लाहौर के सिर्फ दो दुकाना ने, एक मेरे उस्ताद की है, एक मेरी है। आम का पानी तो चने की दाल का पानी ये इस्तेमाल होता है, ये 10 रुपया बनता है। और ये पुरानी सदियों तो साढ़े दादे परदादे बनाते लगे आ रहे हैं। और ये कारोबार जो अभी किसी को दसते नहीं, फिर अपने अजीज को चाचा भनेवा भतीजा भरा पुत्र उन्होंने दसना, बाहर लेबर का काम करता कोई नहीं, ना ये ठीक ठाक है साढ़े को। गर्मी के बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है कि लेबर काम नहीं करते। गर्मियों के काम का जोर होता है, सर्दियों के काम का मतलब अद्धो अद्धा फर्क पै जाता है। मसलन जी अज अभी कोई 200 रुपये कुर्सी बेचने हैं, गर्मियों के 400 रुपये बेच लेंगे हैं। मैं 10 कुल्चे बेचदा, दूजा साल हो गए, अगे खाली लौचरे के नाल ही देइए सर। दुनिया बहुत शकीन हो गई है, 5-4 आइटम होंदियां ने, जिहदे आलू होंदे ने, चने होंदे ने, सलाद होंदा है, चार होंदा है, लौचरे होंदे ने। अगे प्यार मोहब्बत ते खलाक बड़ा सी, ते गाहक भी अच्छे तरीके नाल बोलदा सी। हुण बड़ी शकीनी हो गई है, गाहक भी ऐसे बेअमल ने कि सुकून नहीं गा। दूजे ना कोई खास आइटम है जी सुबह शाम सानू काम आती। सुबह असीं दूध तो बगैर नाश्ता जो साडा स्कूल ने बच्चों को जान का वड्डियां सारे दूध और दही का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को सानू रोटी मिले ना मिले, दूध लाजमी मिलना चाहिए। तो साडे ते यह माहौल है कि सवेर को अगर कोई औरत रोटी पकानी हो तो कहते हैं ये तो सवेर को रोटियां पकान लग पैंदी, उन्होंने मेला दिता जाता है। पहलवान इतना तकलीफ का काम है, इतना मुश्किल काम है कि शायद कोई कर सके। जहाँ की मिट्टी अच्छी है, जहाँ पानी अच्छा है, इसलिए पहलवानी पंजाब में बहुत आला होती है, बड़े जोरावर लोग होते हैं। ये जो पहलवानी है ना जी, ये बहुत नेक लोगों का काम है। मुझे तो पता लगा अच्छे लोग ये काम कर सकते हैं, बुरे का काम नहीं है ये। मेरी जिंदगी की रूटीन है ये, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, पहलवानी करता हूँ 8 बजे तक।
اور اس کے بعد دوپہر کو کھانا کھا لیتا ہوں. شام پھر 4 بجے اکھاڑے میں چلا جاتا ہوں. 7-8 بجے تک اکھاڑے میں رہتا ہوں. اس کے بعد پھر بادام پی لیتا ہوں. بادام پینے کے بعد پھر یخنی پیتا ہوں. یخنی پینے کے بعد میں پھر اکھاڑے میں چلا جاتا ہوں. کبوتروں کا شوق تھا, بچہ تھا میں کبوترا شوق پڑ گیا. میرے میاں باپ نے کبوتر 4 لے کے دے دیے تھے. میں صبح کبوتروں کو سکون چلا جاتا تھا تو آگے میں ان کے کھلنے لگ جاتا تھا. ہمارا باپ کہتا تھا باہر نہیں جانا, اس کو دانے پانا ہے, اس کا دھیان رکھنا ہے. اب میں اس اردو کا شوق لگا تھا بچپن کا. وہ بڑا تلنے کی بداش ہے. پہلے ہم تو کام کرتے تھے, ہمارے محلے میں کئی کلو تھے, اب 2-3 کلو رہ گئے. مشین جو ہو گیا, کام بدل گئے. چھوٹے چھوٹے تھے, ہر چیز کا تیز ملتا, پھول کا, ہر نال کا, گری کا, خسخاس کا, بدموں کا, ہر چیز کا تیل نکل رہا تھا کلو میں. اب مشین جو ہوگا مشینوں پہ چلیں گے, کم کام ہو گیا. ہم نے مجھے پلین دوائی اور اپنے کارخانہ چاندل کے تار کا پایا, بجلی کے تار کا, اور کئی بچے اپنے دفتروں کو ملازمت کرائی ہے. اپنے کبوتروں کارخانے کو کبوتر رکھے ہوئے ہیں. سارے بچے نے اپنے کبوتر کا پاس چلے گئے. اس کو میں جو آتا ہے وہ کبوتر پالتے ہیں, گرمی میں مئی کے مہینے میں اڑاتے ہیں, مئی جون کے مہینے میں اڑاتے ہیں, اڑا لیتے ہیں. تو پھر ان کی اڑار کا پتہ لگتا ہے, یہ کتنی اڑار کرتے ہیں. 8-10 گھنٹے کی میں اڑان کرتے ہیں. ہمارے پاس 2 نسلیں ہیں, ٹکری ہیں, چوکی ہیں, میری گڈ ہے, عمران خان ہے, ہٹلر ہے. یہ باغیوں میں آگے 2 بات دیتے ہیں. یہ نسل 2 کبوتر ہمارے پاس 2 پرانی نسل آ رہی ہے. یہ 2 گزار ہیں میں کہ باغیوں میں مئی جون میں آگے 2 ڈلتے ہیں. 10-12-14 گھنٹے گزار دیتے ہیں. یہ 10 ساڑھے اصول میں کہ صبح 4 بجے ساڑھا مجھ چلے گئے انہوں نے کہا ساڑھے آئیں گے صبح. تو پھر ساڑھے بجے لے آؤں گا جب ساڑھا ٹائم ہوتا ہے تو جا کے کبوتر دہانے. تو پھر کبوتر دیکھ کے ایک کبوتر نے بتا دیا میرا لوانا, میرا لوا کے تو آرام ہے باہر چلے جانے. پھر اس میں چلی لحاظ میں کبوتر تو سالے کبوتر بڑے اطمینان پرواز کرتے ہیں, آہستہ آہستہ چلے نہیں. اس کے بعد ٹائم جو ہے نا وہ دوسرے میں نوٹ کر لیتا ہوں 4:45 بجے 4:30 جو ساڑھے ٹائم میں اس کے بعد بڑے اطمینان میں سیدھا تو اسی طرح ساڈا بندہ ادھر بیٹھا ہے تو اسی طرح نوٹ کرتا جائے گا. جا آخری کبوتر ہوگا انہیں جتنا تسلیم کیا جائے گا. اکثر کبوتر 14-14 گھنٹے 14.5 گھنٹے اڑ چکے ہیں سارے. خوش ہو گئے کبوتر پرواز کر جاتے ہیں. اور بعد ایک سنبھالنا نہیں استاد آگے دوسرے دن پھر اٹھ سکے دوسرے عید راستے کے پھر دوسری بازی اختیار کر اس رات دینا بہت اچھی لگتی ہے. سونے کے کشتے بھی دینے ہیں, مثال سچے موتی دینے ہیں. اگر کبوتر اپنی پرواز صحیح کر سکے انہیں کوئی کمی نہیں سے دیں گے کسی قسم کی. اور 15 پھر 2 دن پہلے ایکسرسائز کرانے پوری طرح. یہ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ افلاطون نے شروع کی تھی پانے کے لیے بڑی پتنگ بنا کے تو بڑے رسے کے ساتھ. کوئی کہتا ہے چین سے شروع ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے جاپان سے, کوئی کہتا ہے یہ مغلیہ دور سے شروع ہوئی. شہنشاہ اکبر کو بہت شوق تھا. ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ ہمارے جو ورثے میں آئی ہے یہ تقریباً 150 سال سے ہے. پیڑھی در پیڑھی جس کو کہتے ہیں. 2 گروپ ہیں, ایک گروپ کا نام ہے استاد محمدین, دوسرے کا فضل الدین تیلی. یہ دونوں گروپوں کے آدمی روزانہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. یہ تقریباً 150 سال سے جو ہے نا 2 گروپ چلے آ رہے ہیں اقبال پارک لاہور میں. ان میں باقاعدہ استادی شاگردی ہوتی ہے. مقابلے میں ہماری یہ قابلیت ہے کہ جب ہم پیچ لڑا رہے ہوتے ہیں سامنے والے کے ساتھ اس وقت ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہم اس کے ایک دوسرے کے کتنے پرانے دشمن ہیں. ہمارا ہر پیج مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے کے بغیر مزہ نہیں ہے. ہم بھی استاد ہیں اس وقت, پہلے ہم شاگرد تھے تو ہم نے ان کو ایک قسم کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے. تو سنت میں دراصل ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے, پتنگ بازی نہیں کرتے ہم. چھتوں کی پتنگ بازی جو ہے نا بچپن سے تو کرتے ہیں, ابھی ہمیں پسند نہیں ہے چھتوں کی پتنگ بازی. بسنت والے دن ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ تہوار مناتے ہیں اور اپنے بچوں کا شوق کرواتے ہیں. اور اس دن ہم کوئی پتنگ نہیں اڑاتے اور لوگ دور دور سے ہمارے
तरह हमारे घरों में जाते हैं ये शौक देखने के लिए। अब ये शौक जो है ये पढ़े लिखे लोगों में भी बढ़ रहा है। बार बार सारा बाहर के बीच कहानी है नए का पानी बड़ा होते और बाहर को मेरी बाहर इसका नए से रोटी नहाने धोते कपड़े धोते सब और खेदा गाड़ियाँ और गुड़ी डंडा कबड्डी उड़ा जंग ये खेदा सब होता पहले बाहर फ्रूट में भरे होते सारे बाहर तो बार बार मेरे मामे सन कोई इसी किताब पढ़ ना इससे बड़े हाफिज है कोई वजह के नाल करके तो बड़ी खलक जुड़ के सुनने होंगे सन कोई हीर लै जाता थी कोई आपो अपने नजरिए नाल जिद जिद के ख्याल होता है रंग आखिया याद से मिलने वाला मैंने दस ना था पल्लियों तेरियों कुछ नहीं खर्च होंगे जोड़ा मुंडियों से चुपका सुहा ना था कल रीम को पैर रखे फिर जिमी से फुटिया क्या ना था पल्ले पा पंजीरियां फेर आटा देता जन्नतों फेर कढ़ा ना था। अंदरून शहर का कल्चर है, छोटे छोटे जब ये पैदा होते हैं तो उस वक्त से इकट्ठे खेलते हैं, तो इनकी तालीम इतनी नहीं होती कि इनके पास फालतू वक्त बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इकट्ठे रहते हैं। जब ये बड़े होते हैं फिर भी थड़ों पे बैठते हैं, आपस में जिसको शरीक करते रहते हैं, मुल्की हालात पे बहस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कोई गम खुशी का वक्त आए तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यही अपने मोहल्ले के मुहाफिज होते हैं, जो आला सोसाइटी की कोठियों में नहीं है। पैर खड़े ते जीरा वीरा, रिश्ते जोड़न कर तदबीरा, लग दलीजी सुनदियां हीरा, की लिखियां रब ने तकदीरा, करे अशारे माई मीरा, शर्मा दे नाल पत्थर हो गए, रंगले पैर कबारे, मेरे लाहौर दे देख नजारे, तेनू धी ब्यानी पैंदी, नानकी छक बनानी पैंदी, रुसी भैन मनानी पैंदी, लथ जांदे सब तेरे चाह, तेरे करना दाने हुंदे, काटे लेख पुराने हुंदे, कमले लोग सियाने हुंदे, पा देंदे तेनू घबरा। दूर दीवार के मुल्क वखरा है, सोसाइटी अलग है, हर चीज तो बेनियाज है। अदा के लाहौर के सिटी वॉल तो बाहर निकल के लहजा ही पता चलता बंदे जो तो जो तो लहजा हो रहे हैं बिल्कुल वो तो अजीब खिता है, उधर की बना के है वो जिसे बड़े शौक आप ही जाके देखे। और हर मोहल्ले से अपनी खूबी है, अपने किरदार होंगे, हर बंदे अपने अपने नवी चीज होगी। फिर देखो ये गाना भी है जी, ये किस्म का लोक गीत है और आज तो 50-60 साल पहले असी बड़ा ब्याह शादियां से सुनते रहे और इस तरह गाया जाता सी। टोल मेरा माई वे घर पक्षी दी लोड़ डोल मेरा, जो माई जाता है तो उस वक्त मेरे औरतें गाँव सन, बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी सन, उन्होंने मैं अपना वक्त यानी 30-40 साल पास किया। क्वालिटी जरूर पैंदी है कि मिसरा सूफी इसके ही सुनते हैं और उतने सख्त लेके जाके जो मिसरा हम तौर पर टिकाऊ करते हैं और इतना अटो कि जानी बोल लपैट स्कूल सूट नहीं थी मेरे को गाइदा, उसका हल करने वास्ते मैं एक पंजवा तार अगे पा लिया जिससे नाल मिसरा जो सी वो वजना भी आसान हो गया और उस गुंजान भी हो गई, इस वास्ते वो आसानी पैदा हो गई। पुराने जमाने में यही कंघी चलती थी, हर घर में इस्तेमाल होती थी, लेकिन जो अब भी समझदार हैं यही कंघी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिर को नुकसान नहीं देती, बाल नहीं तोड़ती
अब तो मशीनी दौर है, घर घर में प्लास्टिक की कंघी हैं, सस्ती भी हैं, लोगों के सिर गंजे हो गए हैं, बाल टूटते हैं। तरक्की का जमाना है, तरक्की है। अब मेरे बाद में ये काम खत्म है। पहले इसी बाजार के अंदर तकरीबन 10 दुकानें हुआ करती थी और हर दुकान के अंदर तकरीबन कम से कम 10-10, 15-15 आदमी होते थे। अब सिर्फ 1-2 दुकानें हैं, उसके अंदर भी 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। महंगाई जो है ना वो भी बहुत बढ़ गई है। पहले ऐसा था कि एक वर्ग जो था तकरीबन 2 पैसे में हो जाता था, अब एक वर्ग जो है वो 25 पैसे का है। उससे बड़ा वर्ग जो है वो 8 आने का है, रुपए का है। तो अब जो है ना कोई डेकोरेशन, मिठाई वाले भी जो है ना वो भी अब इस्तेमाल नहीं करते। ये हिकमत का एक जुज है, दवाइयों में ये काम में आता है। पहले जो था ना ये बड़े बड़े उमरा वगैरह नवाबों में, बादशाहों में, इन चीजों में इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये चांदी ठंडी होती है, सोना गर्म होता है, ये दिल के लिए, ताकत के लिए होता है। अब चल रही है इंग्लिश मेडिसिन। अब इंग्लिश मेडिसिन जो है ना वो हाथ के हाथ फौरन ही आराम कर देती है, तो इस वजह से ना इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पुराना तिब जदीद दौर का जदीद तरीका है, इसमें अद्वियात जो है देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। इसका इलाज जो है वो पायदार है और हर मर्ज से इस्तेमाल किया जाता है। हमारा दुकान जो है तो 150-200 साल की है पुराना। अब कुंदन का काम कोई नहीं कराता है, इसलिए कि सोना भी बहुत कीमती है, इसकी मजदूरी भी ज्यादा है। अगर 100 रुपये तोला सोना है तो 50 रुपये तोला इनकी मजदूरी है। ये जो काम है ये 200 साल, 150 साल, 250 साल इनकी मियाद है। पुराने और नए जीवन में ये फर्क है जी कि ये 1 साल या 2 साल बाद टूट जाता है, वो टूटता नहीं है। उनके अंदर सोना भी ज्यादा होता है और उनकी पायादारी होती है। अब जो है वो आप शौक करते हैं नए का, लाइट हो, शौकी हो, जूठे ना हो, वो ले आते हैं लोग। 2 साल 1.5 साल पहना फिर वापस दे देते हैं। मशीन जो है वो मशीन ही तो काम कर सकती है, जो हाथ का काम है वो मशीन नहीं कर सकती। हाथ का जो काम है वो हाथ में ही होता है, इसकी निफासत हो रहा है और मशीन की निफासत जो है वो हो रहा है। जो कि मगरबी साल है और उसमें क्लासिकल म्यूजिक से लेकर ठुमरी, दादरा, गजल, कोई दुनिया की ऐसी धुन नहीं है जो कि उन्होंने इसमें, बल्कि यहाँ तो ऐसा शौक था कि गरीब गरीब गीतों में घरों में बैठकर रात को मैं जमाकर लोग क्लासिकल गाते थे। आज के जमाने में एम्पलीफायर से आवाजें बहुत ऊंची करती है, लेकिन इसमें मौसीकी नाम की कोई चीज, धूम धड़कन है, शोर है, कुछ नहीं। हमारा बहुत जरूरी चीज है सुर और लय। सुर जो है वो तो इंसान को एक सेहत बख्शता है, उनकी गदा है, और लय है वो इंसान को जिंदगी बख्शती है। लाहौर के सारे दरवाजे बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन भाटी दरवाजा जेलसी ऑफ लाहौर कहलाता रहा हमेशा, इसलिए कि तमाम लाहौर के शोरा, अदीब और दानिश्वर यहाँ मुकीम रहे। अंदरूनी शहर की जिंदगी की फिजा नहायत पुरसकून और खुशगवार होती थी। इल्म और अदब का दौर दौरा था और ऐसी महफिलों की तमाम रौनक सिमट कर बाजार रकीमा में आ गई थी। दानिश्वर, अदीब और शोरा इस बाजार के दिल दीवार की जीनत बन गए। अल्लामा इकबाल जो अपने लाहौर की आमद पर भाटी दरवाजा के अंदर क़याम पजीर हुए थे, इन महफिलों की रूह रवां थी। इसी बाजार में जजेस हाउस है। इस फैमिली में इत्तेफाक से 9 जजेस गुजरे, जिनमें से एक सैयद मोहम्मद लतीफ जो नामवर सियासतदान थे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ लाहौर, हिस्ट्री ऑफ मुल्तान और आगरा लिखी है, वो भी इन्हीं के फरजंद थे। इस बाजार में जो दानिश्वर गुजरे हैं उनमें से चंद के नाम में लेती हूँ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, फैज़ अहमद फैज़ के वालिद, आगा गशर, पतरस बुखारी,
चौधरी शहाबुद्दीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना ज़फ़र अली खान भी इसी बाजार में रहे। बाजार हकीमा की बुनियाद हकीम खुदाबख्श ने डाली। उनकी शोहरत सुनकर हमारे बुजुर्ग बग़र्ज़ इलाज एक शरीफ से आकर बाजार हकीमा में मुक़ीम हुए थे। उनके तीनों बेटे फ़कीर सैयद अज़ीज़ुद्दीन, नूरुद्दीन और इमामुद्दीन, जो रंजीत सिंह के दरबार से वाबस्ता थे, अपनी जाँ रोशन को नज़रअंदाज करके फ़कीर का लक़ब अपनाया था। वैसे उनके ज़ौक़ का अंदाज़ा फ़कीर खाना के अजायब घर से खूब लगाया जा सकता है। फ़कीर खाना म्यूजियम 50 साल से इस हवेली में कायम है और ये हमारे बुजुर्गों की हवेली थी। मैं छठी जनरेशन हूँ इस हवेली के अंदर। हमारे पास इस वक्त लगभग 21,000 के करीब मुख्तलिफ एंटीक्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कलेक्शन भी शुमार होता है। इतनी बड़ी कलेक्शन की देखभाल करनी बहुत मुश्किल है। इस म्यूजियम को देखने के लिए बाहर से बहुत लोग आते हैं, खासकर ट्रैवलर्स, और जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका, यानी तकरीबन तमाम दुनिया के लोग यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को इतना नहीं मालूम कि इतना बड़ा कलेक्शन इस भाटी गेट में होगा। मैं क्या बयान करूँ इन हवेलियों के शब रोज़ की रंगीन और आलिमाना दास्तान जो हमने अपने बुजुर्गों की जुबानी सुनी हुई है। यहाँ के माहौल इल्म दानिश का ये आलिम था कि मर्दों से अलावा फ़कीर ख़ानदान की तमाम औरतें फ़ारसी और उर्दू पर पूरा अबूर रखती थी। दूरअंदेशी की एक मिसाल जो मेरे नाना फ़कीर सैयद इफ्तिखारुद्दीन ने काबुल की सफारत पर से सबकदोश होने पर अंग्रेज़ हुकूमत को मशवरा दिया था, वो आज 80 साल बाद गयूर अफ़गानियों ने हकीकत बना दिया। यहाँ पे ये शुरफा जो पुराने ज़माने के रहने वाले हैं वो भी इस कदर तंग आ गए हैं कि वो अब सोच रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाए। ये जो घर है जो कि हमारे दादे ने बनवाया था, अब हम इसको भी छोड़ने पर मजबूर हो गए और अनकरीब हम यहाँ से चले जाए। यहाँ पे जो म्यूजिक रूम बन गए हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं उससे। एक लड़का जो है वो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का, तो कम से कम उसको ये इतना मौका नहीं मिलता कि अपना लेक्चर ही प्रिपेयर कर सके। फ्यूचर इसका ये है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो ये जो लाहौर शहर है ये स्लम बन जाएगा। बताया तो इसमें जा सकता है कि इस एक जो चीजें बनी है उसको जगह के बहाल करने के लिए उसको ईमानदारी के साथ कैरी आउट किया जाए। जो शहर इतनी तारीख रखते हैं अपने पीछे, 2000 साल पुरानी तारीख है इसकी, तो इसको तो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। मेरे शहर में 200 हवेली ऐसी हैं जिनको कहा जाए कि ये प्रिजर्व रखे, और 2500 हवेली हैं जिनको ये कहा जाए एज इट इज रहने दी। ये तो बुनियाद है, बुनियाद को नहीं गिराना, ये बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है हमारा इसी बुनियाद पर कायम है। अब मेरी उम्र 93 वर्ष है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, और मेरे बाप सैयद अब्बास अली शाह थे, वो मुंसफ थे, और मेरे चचा जो थे वो सैयद दिलावर अली शाह थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। मेरे दादा सैयद हाकम शाह वो हकीम थे महाराजा पटियाले के। 1304 हिजरी में ये हवेली बनी। ऊपर मर्दाना निशस्त है, मेरे चचा ऊपर बैठा करते थे और यहाँ अदालत किया करते थे। यहाँ बड़े बड़े रईस आके रहते थे। किताबें जो हैं वो बाहर लाइब्रेरी को दे दी हैं, वो 3-4 लाख रुपए की मेरी किताबें थी, मुफ्त दी। मैं अपनी जद्दी जायदाद बेच के नहीं चाहता, इसमें बेइज्जती और बदनामी है, बुजुर्गों का नाम इसमें है। अब ये मेरा मकान है जो मेरे आबावा अजदाद मेरे लिए छोड़ गए हैं। मुझे इससे इतना प्यार है, मोहब्बत है कि इसका एक ये शीशा भी टूट जाए तो मुझे जहां से भी मुयस्सर आए मैं लाकर इसे लगाता हूँ। अब जो है यहाँ की आबादी को 60 लाख के करीब हो चुकी है, और ये मसाइल जो पैदा हुए हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ कि मैं बाहर कोठी ले लूँ, लेकिन ये जो पुरानी इकदार हैं मैं इन्हें नहीं छोड़ना पसंद करता। बुजुर्ग कहते हैं कि जरा तालीम तो बगैर जरा इंसान नहीं होता। इस वास्ते मैंने बड़ी खुशी है कि मेरा बच्चा वो भावें नौकरी नहीं मिली पढ़ के
मेरे नाल काम करता है, मैंने बड़ी खुशी है कि वो तालीम उन्हें हासिल की थी। He won freedom for us. He worked of Pakistan and made. He worked for Pakistan and made it strong. Every Pakistani love him. Oh,